حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ ہو چکا ہے دیوائے احمدیت اپنی جان کے ساتھ لہرایا جا چکا ہے اور صدر اجلاس اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ اس کمیٹی نے کچھ فیصلے کیے
اور اس فیصلے کو دنیا میں نافذ کیا جائے کیسے، یہ سوچا۔ آپ یقین جانیے 1990s کے 100 سال تقریباً بعد لوگ یہ سمجھے، یا وہ کتاب جسے ڈیوڈ بن-گورین نے دنیا کو بتایا، The Protocols of Elders of Zion، اس کتاب کو میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یا رحمانی ہے یا شیطانی ہے، لوگوں کا یہ تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے۔ جب وہ کتاب میرے یہاں پہ آئی، اس کا لینگویج الگ تھا، ایک رشین لیڈی جو اسی زائن سوسائٹی کی ممبر تھی، اپنے ایک دوست کے پاس جو سینئر ممبر تھا اس کے گھر گئی، رات کو گئی ملاقات کرنے کے لیے، تو وہاں وہ ایک کتاب کا پڑھا تھا، پتلی سی کتاب ہے، اس میں بہت سارے رولز ہیں کیا ہے الحاق کو پتا کثرت کیسے پائی جائے تاکہ وہ ہلاک تو عورت امیڈیٹلی اسی وقت رشیا سے بات ہو رہی ہے جرمنی، اور جا کے وہ ایسے حواس یافتہ ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس میں جا کے اس کو رشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا، پھر اس کا انگلش ورژن آیا 1940s میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوش اسلوبی سے اس فریضے کو سر انجام دیا اور رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی۔ تیرا نبی جو آیا اس نے خدا دکھایا، دین قویم لایا، بدعات کو مٹایا۔ کہیں نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اسلام میں کوئی ایسی روایت قائم کی تو اسے ثواب کے علاوہ ان لوگوں کے ثواب میں بھی حصہ ملے گا جو اس پر عمل کریں گے، بغیر اس کے ان کے ثواب میں شامل کی جائے۔ اور جو کہ اسلام میں بری روایت جاری کرے تو اسے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں میں سے بھی حصہ ملے گا جو اس پر عمل پیرا ہوں گے، بغیر اس کے ان کے گناہوں میں کوئی کمی کی جائے۔ تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو یہ نصیحت کی کہ سب سے اچھی تعلیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سب سے بری بات میری سنت میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا ہے، کیونکہ ہر نبی ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام بالآخر دوزخ ہے۔ سنت نسائی پیارے بھائیوں، لیکن اس تعلیم اور نصیحت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین پیشگوئی کے مطابق کہ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام میں بھی بگاڑ پیدا ہونا نہ ہوا، اور قسم قسم کے بدعات اور بدرسومات مسلمانوں کی بھی پیدا ہو گئے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے جوانی و وفات تک مسلمانوں میں ایسے ایسے رسوم عائد ہیں کہ ایسے مسلمانوں پر افسوس ہوتا ہے، اور دور حاضر میں مسلمانوں کے حالات کی نقشہ کھینچتا ہوا نظر آتا ہے۔ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ٹھیک رہ گیا اسلام کا نام باقی۔ آج سے ایک صدی قبل جب چاروں طرف تاریخی کا دور ہو رہا تھا اور کشتی اسلام ہوا میں پھنسی ہوئی ہچکڑے کھا رہی تھی، تو ಅಧಿಕಾರಿ ವರೆಣ್ಯ ಬಹುಮತವಿದ್ದ ಮಂತ್ರಿ ಸಭಾಪತಿ ಮಹೋದಯ ಸುದೂರ ಪಂಜಾಬ್ ಭಾಗದ ଆମର ଆଦରଣୀୟ ଅଜିତ ମହୋଦୟ ଅବ୍ଦୁଲ ୱାକିଲ ନିୟାଜ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ पवित्र आत्मा आपणत धर्म समितिर प्रवक्ता अमीरुद्दीन खान महोदय, रईसुद्दीन खान महोदय, बिन अब्दुल हफीज महोदय एवं मोर सम्मुखरे एक दिव्य पवित्र आसନରେ समवेत होई
ولمسنا على मुखमिश्रित बाणीको प्रवर्तक मोहम्मद प्रचारित धर्मनीतिको श्रवण करी निज जीवनକୁ चरितार्थ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ସଲାମ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ इस्लाम धर्मर यहाँ दृढ़ विश्वास एवं सकल धर्मर मूल मंत्र व सार जे एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। पवित्र कुरान कहे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह एक। अहमदिया मुस्लिम संप्रदाय एकेश्वरवाद को संपूर्ण एवं दृढ़ता सहित विश्वास करे, किंतु कौनसी अवतार बा महापुरुष तथा युग संस्कारको अल्लाह बा परम ब्रह्म बा एकेश्वर बोली विश्वास करे नहीं। सेतिजोगु यीशु मसीह हुअन्तु बा अन्यान्य अवतार माने हुअन्तु इस्लाम समाजको यथेष्ट सम्मान एवं सत्कार गरिଥାଏ, किंतु तांकु परम ब्रह्म परमेश्वर अल्लाहଙ୍କର समकक्ष विश्वास करे नहीं। मु आजिर एही जो वर्तमान आम सम्मुखरे माननीय रंकनी बलियार सिंह महोदय जो आपनମାନଙ୍କ सम्मुखरे निजर मतामत रखिले, मु धन्यवाद देउछि एवं ता सहित आपनको अनुरोध करूछि कि अहमदिया मुस्लिम जमातर जो धर्म विश्वास अछि से विषय यदि अधिका किछि चर्चा करबाक चाहନ୍ତି वो भी हैं जिनके बारे में कौन इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशकश फरमाई थी कि वो माल तकसीम करेगा लेकिन उसे कबूल करने वाला कोई ना होगा। सामने ये वही बात ही तो है जो रूहानी क़ज़ाए इस्लाम से मौजूद है। सैयद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो क़ज़ाए जो हजारों साल से मज़मून थे अब मैं देता हूँ अगर कोई मिले उनके पास। बिलाल अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ कि कलाम को जीसस शोरा मान रहा दाखिल कलाम रुपसा में लेनो रब्बिल करीम। तेरे कलाम में एक चीज है जिसमें शायरों का दखल नहीं है। तेरा कलाम खुदा की तरफ से फसीह किया गया है। नील फरमाते हैं वो जो खुदा के मामूर और मुर्सल की बातों को गौर से नहीं सुनता और सिर्फ तहरीरों को गौर से नहीं पढ़ता, उसने भी तकब्बुर से हिस्सा लिया है। तो कोशिश करो कि कोई हिस्सा तकब्बुर का तुम में बाकी ना हो ताकि खराब ना हो जाओ और तुम अपने अहल-ए-हाल से इंतजार पाओ। हमें से अगर कोई दर्शों तदरीस को सुनना नहीं चाहता, पीठ दिखाकर चला जाता है, गोया कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके अंदर भी तकब्बुर पाया जाता है। दिया फरमाते हैं सब दोस्तों के वास्ते जरूरी है कि हमारी कुतुब को कम से कम एक दफा जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि इल्म एक ताकत है और ताकत से शुजाअत पैदा होती है। नारे तकबीर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफा गुलाम अहमद की इस्लाम अहमदियत जलसा सालाना के नारे तकबीर। नीला फरमाते हैं
शामिल अफराद कुर्बानी करके मुहैया करते हैं। दीन इस्लाम की तरक्की और उसकी फलाह व बहबूद के लिए वफादारों की तरफ से माली कुर्बानी एक मुसल्लम अमल है। इसलिए कुरान करीम के आगाज़ में ही मुत्तक़ियों की अलामात और निशानियों का जिक्र करते हुए कुरान मजीद ने बयान फरमाया है कि वो भी मारना और मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ई मसूलात और वाक़ई के ज़कात का अल्फाज बयान फरमाया है कि वो मुत्तक़ी वो हैं जो अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशबू हासिल करने के लिए माली कुर्बानी को अपना शेवा और शुरा इख्तियार बनाते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें लायकुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस वसिया खालिदून की खुशबू सुनाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बार-बार माली कुर्बानी की यकीन बताते हुए इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। बेशुमार रिवायत है। एक रिवायत में आता है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं, उनमें से एक ये कहता है या अल्लाह दर्द करने वाले सकीफ को और नवाज और सिरश के नाम पर चलने वाले और पैदा कर, और दूसरा ये कहता है या अल्लाह रोक के रखने वाले कंजूस को लाकर दे और उस नमाज और मर्तबा को बर्बाद कर। बुखारी किताब के बाद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कौम को चाहिए कि हर तरह से सिलसिले की खिदमत में डाला है, किसी तरह की खिदमत की रजामंदी में कोताही नहीं होनी चाहिए। देखो दुनिया में कोई सिलसिला बगैर चलने के नहीं चलता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब रसूलों के वक्त बंदे की जमा किए गए, बस हमारी जमात के लोगों को भी इसका मतलब ख्याल जरूरी है। अगर ये लोग इंतजाम से एक एक 45 साल भर अगर आप सब लोग इसको गौर देखेंगे, उसका जायजा लेंगे, तो आप सब इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि वाकई में जामिया अहमदिया में तालीम हासिल करने की जो इफ़ादियत और अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन मैं हर एक से पूछता हूँ और हर एक अपनी असेसमेंट करे, जिसको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा कि वाकई में जामिया अहमदिया में तालीम हासिल करने की बहुत अहमियत है। और इस पर तकरीर और लंबी लंबी फैसले और दलाइल देने के बजाय अगर हम खुद इस पर गौर कर ले, फिक्र कर ले, तो हमें इस बात का जवाब मिल जाएगा। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अंबिया का जो वजूद होता है वो पहाड़ों की मानद होता है। हम देखते हैं पहाड़ों में बर्फ होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ पानी का जो ज़ख़ीरा होता है वो जमा होता है, लेकिन वो जो पानी का ज़ख़ीरा है वो आगे जब रमा दवा हो जाता है, वो छोटी छोटी नदियों और छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो होती है ना, उसकी सूरत में वो बंजर ज़मीन और दूसरी जो खेत होते हैं उनको सरसों से आज़ाद करते हैं। तो जब उसके फरमाते हैं कि अंबिया जो होते हैं वो पहाड़ होते हैं, वो ग्लेशियर होते हैं, वो बर्फ और पानी का ज़ख़ीरा होते हैं। जिनके कानों में ये जिक्र पड़ा है, अल्लाह ताला उनका गुनाह माफ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी तरह का एक जलसा में हम सारे लोगों को शिरकत करने का मौका मिला, बेहतरीन तलावत सुनने को मौका मिला, खूबसूरत आवाज़ में नज़में सुनने को मौका मिला और जितने सारे तकारीर हुए। آمنوا اتقوا
إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون جو پھر سے ہرا کر دے
في عمد ممددة واتقد يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عليم آنکھ کے پانی سے یارو کچھ کرو کس کا علاج آسماں اے غافلو اب آگ برسانے کو ہے آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار دیکھو بھائی مانے نانا دکھا سے ماری لکھا لکھا جاؤ چھنتی کے جگت چھاڑی جانی پاپا بھرا ہیلا نہ سہی لتا دھرا চাহু অছদে বেশান্তি নিকেতন অবিলম্বে নিয় কলম কি শরণ তমেব শরণম গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত তৎপ্রসাদাত্তম শান্তি স্থানম চাপস্য চি শাশ্বত সন্মানাস্পদ সভাপতি মহোদয় মঞ্চাসীন বরেণ্য অতিথিবৃন্দ সভা সজ্জন মণ্ডলী पर्दा अडवाळ ओ दूरे रही स्मृतिका मोर लग्ना उदास रात मने तथा कारणवशत जलसा का नवासिकारी घरे रही स्मृतिका मोर वयोज्येष्ठ मुरब्बी अंसार ओ खुदाम भौणी भाई मने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अनेक व्यक्तिगत ग्राही पाइबे एवं अनेक मृत्युवरण करिबे से समय में सन्निकट एवं मु देखुची के से विपत्ति फाटक पाखु आसी जायछि दुनिया में प्रलय देखिबो अंतिम युगर प्रवर्तक प्रतिशुद्ध अवतार ओ मसीह तथा अहमदिया मुस्लिम संप्रदाय प्रतिष्ठाता हजरत मिर्जा पाक मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम विश्व समाज को महाविश्व उद्धार चेतावनी देई कहंती हे युग तू मध्य शांति रे रहू हे एशिया तू मध्य निरापद रहू हे दीपपुंजवासी कौनसी कुटी ईश्वर तुमको साहाय्य करिले नहीं मु महानगरी सब टळी पडुथिबार देखि पारुछि ओ आबादी वस्ती को परित्यक्त ओ अनाबादी अवस्था में देखिबार पारुछि परमेश्वर बहु समय धरि निरत रहिले एवं तांक सम्मुखरे विभत्स ओ घृत कार्य करागला किंतु से बाक्स्मृति करे नहीं वर्तमान से निकर दोषयुक्त मुखमंडल रे खाइले जार कान अछि से सुनो जे समय एबे आ बेसी दूर नहीं मु यथासाध्य प्रयास करिछि जे प्रभुंक शांति पद छाया करे समस्त को एकत्रित करिबी पुणी यह जरूरी थिला जे नियतिर विधान अवश्य पूर्ण हेउ मु निराट सत्य कहूछि जे देशर नूतन परिवर्तन मध्य निकटतर होई आसुछि महांत युग तुमर चक्षु सम्मुखरे महाचक्रवात जनित बन्यार तांडव भଳି दृश्य आसिथिब लूट भूमिर घटना तुमे निजर नेत्रे चरम व्यभिचारर कुपरिणाम स्वरूप एड्स महामारीर भयावहता देखि पाइब किंतु परमेश्वर प्रकोप साधनरे मंथरवती को पसंद करती एणु अनुताप कर फलरे तुम प्रति दया करा जाय करिब हकीकत रही वाणी सदाय खंड 22 पृष्ठा 268 प्रिय श्रोतागण मु प्रथमे सुरे कार्य जेउ आयत पढ़ी सुनाई देली तार व्याख्या करी हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद तृतीय खलीफा अल मुस्लिम महमूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते अल कादियात को विभल्य को प्रलय हर एक काम का आसान होना आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना ऐसे बेकरारी और बेचैनी के दौर में
जमात अहमदिया के 5वें खलीफा हजरत मिर्जा मसरूर अहमद इज्जत आलम सजीद गुज़िश्ता 20 सालों से क़याम अमन के लिए दुनिया के हर मुल्क और उनके सरबराहों को तवज्जो दिलाते आ रहे हैं और हमारा यकीन है कि आपकी ये काविशें, आपकी ये कोशिश आखिरकार कामयाब होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आपकी खिलाफत का ये दौर एक इनकलाब अंग्रेज दौर और खुदा की ये बशारत और खुशखबरी आपके साथ है कि इन्नी माका या मसरूर, ए मसरूर मैं तेरे साथ। चुनाचे यही मसरूर ऐलान फरमाते हैं, आज दुनिया में अमन और अमान का एक बहुत बड़ा मसला है, हर तरफ खौफ और बदअमनी है, असला और इंसानी तबाही के हथियार आम हो गए हैं, एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बना हुआ है, मजबूत कौमें अपने से कमजोर कौमों पर मजालिम उठा रही हैं, दहशतगर्दी खत्म करने के नाम पर दहशतगर्दी हो रही है, कि मीडिया ने भी खूब हरास की फजा पैदा करने में कोई कसर रवा नहीं रखी। इन हालात से निकलने की एक ही राह है कि मुसलमान अपने अमल से इस्लाम को बदनाम करना छोड़ दें, वो इस्लाम की हकीकी तालीम को अपनाएं और बाहें मुत्तहद बजाएं। गैर अक़वाम की भी भलाई इसी में है, हुज़ूर फरमाते हैं गैर अक़वाम की भी भलाई इसी में है, इस्लाम के झंडे तले आ जाएं, क्योंकि दुनिया का अमन इस्लाम से ही वाबस्ता है। दरअसल इस्लाम नाम ही सलामती का है, हुज़ूर फरमाते हैं दरअसल इस्लाम नाम ही सलामती का है, वो अमन को आखती मजहबी रवादारी की तालीम देता है, वो हमें सिखाता है कि मजहबी पेशवाओं और इबादत गाहों की इज्जत और तकरीम की जाए और दूसरों की मजहबी जज्बात का इहतराम किया जाए। इस्लाम हमें सिखाता है कि अदल व इंसाफ, बाहिन सुलह और सफाई, प्यार और मोहब्बत का माहौल कायम करने और एक दूसरे के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दरस देता है। वो हर किस्म के फितना फसाद और बुग़्ज़ और नफ़रत की नफ़ी करता है और खत्म करवाता है। वो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी, टेररिस्ट या खौफ की फिजा पैदा करने से मना करता है। हफ्ता रोज़ बदर कादियान 19 दिसंबर 2013। सामीन कराम, हकीकत यही है कि अमन की ख्वाहिश के बावजूद लोगों को उस वक्त तक अमन नहीं मिल सकता जब तक मुख्तलिफ किस्म के इंसानों के लिए किसी एक कायदे के मातहत अमन का उसूल ना हो, क्योंकि दुनिया के इंसानों में हज़ारों इख्तिलाफ़ात हैं, उनके मफाद मुख्तलिफ, जज्बात मुख्तलिफ हैं। कहते पर दिल उल्फत से खाली है, उल्फत उल्फत कहते हैं पर दिल
देखो भेड़िया निकलेगा जो भेड़ों का रखवाली है। उल्फत उल्फत कहते मजलिस आमिरा की जिम्मेदारी ये है कि जमात में प्यार और मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारा की फिजा कायम की जाए और जो कोटेदारान हैं वो किस रंग में काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी और निगरानी अमीर साहब और सदर जमात ने करनी है। और ये रिकॉर्ड रखना है कि हमारी जमात में क्या तजदीद है, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने अंसार, खुदाम, लजनान अफराद हैं और उनकी दीनी अखलाकी हालत कैसी है। ये सब जमातों के अमीर और सदराने जमात की जिम्मेदारी है और तोहदेदाराने जमात की जिम्मेदारी है कि हमारी जमात के मर्दों अहबाब व मस्तूरात की दीनी अखलाकी रूहानी हालत कैसी है, नमाजों की हालत कैसी है। दूसरी कमेटी या दूसरी मजलिस जो है वो इस्लाही कमेटी है। इस्लाही कमेटी में 7 मेंबर हैं, वो आप सबको पता है। उस ताल्लुक से ये कमेटी हज़रत खलीफतुल मसीह गावे रहमहुल्लाह ने कायम करवाई और उस वक्त आपने इस्लाही कमेटी के बारे में उनके कामों के बारे में जो बात बयान फरमाई थी वो खास तौर पर जो जमातों से इस वक्त तोहदेदारान आए हुए हैं, खसूसन सेक्रेटरियानी इस्लाह व इरशाद, आयत साहिब, ज़हीर साहिब, सदर साहिबा लजना हिमायला अगर ये जलसा में हैं जमातों की तो इस बात को ज़रा तवज्जो से सुन लें कि हज़रत खलीफतुल मसीह गावे रहमहुल्लाह ने इस्लाही कमेटी किस मकसद के लिए कायम की। आप फरमाते हैं मैंने एक इस्लाही कमेटी कायम की और मुल्क की सतह पर तमाम मुल्कों को ये हिदायत की थी कि आप इस्लाही कमेटियाँ कायम करें और बाद बुराइयों की निशानदही करके बेहतर इसके कि वो कैंसर बन जाए, नासूर बन जाए, उनकी इस्लाह की कोशिश करें और अपने अखलाकी मरीजों को शफा देने की कोशिश करें। मैंने जो नसीहत की थी वो ये थी कि इस्लाही कमेटी साहिब फिरासत, अक्ल व फहम रखने वाले, सूझबूझ रखने वाले लोगों पर और गहराई से गहरी हिस्स रखने वाले। हे प्रियजन माने ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦ କାମକୁ ତ୍ୟାଗ କର କାରଣ ଧରା ପଡ଼ିବାର ସମୟ ଅତି ନିକଟତର। ଯେ କେହି ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ବଳ ବୟସ ଅଛି ଆଉ କେତେବେଳେ କରିଦେବି। ହଜୁର କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦ କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ କାରଣ ଧରା ପଡ଼ିବାର ସମୟ ଅତି ନିକଟତର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ ସେ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଯେ ଶିଫ୍ଟ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିବ। प्रत्येक सही व्यक्ति जे मिथ्या दुराचारितार संश्लिष्ट अछि से धरा पड़िबो। प्रत्येक सही व्यक्ति जे संसार प्राप्ति रे सीमालंघन करि जाइछि एवं सांसारिक कार्यव्यस्ततार युक्त रहिछि से धरा पड़िबो। प्रत्येक सही व्यक्ति जे परमेश्वर को सतत अस्वीकार करिथाय से धरा पड़िबो। प्रत्येक सही व्यक्ति जे परमेश्वर को पवित्र अवतार वातावरण को प्रति असभ्य अवतार मरण करिथाय एवं निजर एही आचरण को विरोध हुए नहीं से धरा पड़िबो। देखो आदि मु स्पष्ट रूपे दर्शाई देई अछि आकाश और पृथ्वी उभय सुनुचंती जे प्रत्येक सही व्यक्ति जे सब को परिहार करी उदंडता प्रति आनंद हेबो एवं प्रत्येक सही व्यक्ति जे भूपृष्ठ को निज कर्म द्वारा अपवित्र करिबो से धरा पड़िबो। एही पितरा प्रसाद एवं पाप इत्यादि पहले यदि
निज अभ्यंतर पवित्र और पूर्ण विश्वास उत्पन्न कर एवं परिणाशकारी बैठक में बस नहीं जदि जमात को कहीं हटा प्रयास करुँगी एपरी लोकंर बंधुत्व को तमें परित्याग कर और मेरे सामने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला का नए फजल और एहसान है हम लोग 2 रोजा से रूहानी इजलास मुनक़्क़द कर रहे हैं। ये जो इजलास इसकी बड़ी अहमियत और बरकत फायदे हैं। ऐसा है अमीरे मन को ऐसा बादशाह मेरा खिलाफत महबरे उला खिलाफत हिंदी में बोलूंगी, उड़िया में बोलूंगी। हिंदी में बहुत धन्यवाद। यह मेरा सौभाग्य है कि आप सबकी तरफ से यहाँ के सांसद होने के कारण मुझे आपने निमंत्रित किया। इस जलसा में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इतनी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित रहेंगे ऐसा सोचा नहीं था। कल रात दिल्ली से आई हूँ। संसद अधिवेशन
اے شمع دیکھ پھر تیرے پروانے آ گئے، بندھن تمام توڑ کے دیوانے آ گئے۔ دریاؤ بحر کو ہو بیاباں کو پھاند کر، دریاؤ بحر کو ہو بیاباں کو پھاند کر، گر پڑ کے تیرے در پہ ہیں مستانے آ گئے، گر پڑ کے تیرے در پہ ہے مستانے آ گئے۔ اے شمع دیکھ پھر تیرے پروانے آ گئے، بندھن تمام توڑ کے دیوانے آ گئے۔ اہل زمین نے چاہا پہنچنے نہ پائے، اہل زمین نے چاہا پہنچنے نہ پائے، افلاک سے ملک انہیں پہنچانے آ گئے، افلاک سے ملک انہیں پہنچانے کیسے خدا جانے چاروں طرف سے کیسے خدا جانے آ گیا۔ اے شمع دیکھ پھر تیرے پروانے آئی، مصرع ہے لب پہ آیا، صد شکر ہے خدایا، صد شکر ہے خدایا۔ محو ثنا گرو ہے قدوسیاں ہے پھر سے، بیت الفتوح مسجد عظمت نشاں ہے پھر سے، بیت الفتوح مسجد عظمت نشاں ہے پھر سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یورپ ہوا ہے پورب اسلام کی سحر کا، لہرائے گا جہاں میں پرچم یہی ظفر کا، لہرائے گا جہاں میں پرچم یہی ظفر کا۔ تیری عطا سے ہے سب کب کام ہے بشر کا، باطل کے دل پہ گرتی بر کے تپا ہے پھر سے، بیت الفتوح مسجد عظمت نشاں ہے پھر سے، بیت الفتوح مسجد عظمت نشاں ہے پھر سے۔ سبحان اللہ